Well, for the next presentation, I would like to request Mr. Abdul Qadir from PwC, partner in PwC. Um, I don't need to really again and again appreciate and inform you how much uh, Abdul Qadir has worked for the Pakistan SEO Summit to make it a success. He's just like family. Thank you. Thank you very much. Thank you इरफान साहब फॉर अ सेशन. थोड़ा पेसिमिस्टिक था और टेंशन था, लेकिन रियलिटी, इट्स अ रियलिटी. एंड अगेन 3-4 दफ़ा आज कामरान भाई ने थैंक्स कहा है. थोड़ा सा अगर कुछ लोग बहुत पीछे हैं तो आगे आ सकते हैं, अगर रिक्वेस्ट है सिर्फ. जितना बेहतर हो सकता है, थोड़ा सा आवाज़ मेरी बेहतर आ जाएगी. And again, thank you the organizers for giving me the opportunity to talk on very important topic, very critical topic, but almost most neglected topic, that is cyber security. इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि बिल्कुल डे एंड पे ही साइबर सिक्योरिटी के 2 सेशंस रखे गए, एक मेरा और एक मात का. तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है, बट अनफॉर्चुनेटली. But this event actually builds on decades of, because I have been involved with them since a decade or most, with the local IT fraternity. They have the very good relationship with corporate leaders from almost all sectors and critical major IT vendors all around the Pakistan. So I think अगर थोड़ा सा सब जाग रहे हैं तो big round of applause for Kamran bhai and his team. So, of course, let me start with the expression of gratitude to all of you. All of you, because you all are representing in the morning as well as now in the evening what is best in the IT and cyber security leadership of the Pakistan. So thanks to you, all of you, because of your perseverance, because of your resiliency, and because you are still staying in Pakistan, and inshallah will stay in Pakistan for the good. For the latest stats, for the my topic, the mobile phone subscriber in Pakistan is actually 180 million, out of which almost 100 million are 3G or 4G users. So we can know that apart from all pessimistic, unfortunate matters and economic crunch and political crunch, but it is actually the opening the doors of the financial inclusion. Huge digital transformation opportunity is present in Pakistan nowadays, especially post-COVID. You know, Pakistan is ranked 3rd most globally for IT freelancing expertise. So it's a huge opportunity for us. Branchless banking is about 65 million. E-banking transaction rose to actually 300 million transaction per year, that worth about 30 trillion rupees. So this is the worth. But unfortunately, we have discussed more about AI, machine learning since morning, and then, of course, ChatGPT is the new buzzword. But 2022 is already shaping up to the one of the worst on records of cyber attacks, not in the world, but in the Pakistan. And we don't know that this cyber attack not only lead to the organizations, not only impacted the organizations, but it is impacting the nations as well, due to the cyber warfare, where systems are actually used through the internet in place of missiles or guns, we know. So in Pakistan, of course, we have to keep building our security walls higher and higher, because cyber criminals are building longer and longer ladders. एंड साइबर क्रिमिनल्स के बारे में कहते हैं ना, खंजर पे कोई दाग ना दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो. सो मैं अपने एक्सपीरियंस और बहुत लिमिटेड नॉलेज से कुछ पॉइंटर्स को डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि इमर्जिंग थ्रेट में, बीइंग अ कॉमन मैन, बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन CIO, बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन CISO, हमें किस तरह करना चाहिए. एंड इट इज़ जस्ट एन आई ओपनर और क्रिटिकल की पॉइंट्स, एंड देन वी मे डिस्कस लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी इज़ जस्ट लाइक अ ब्रेक ऑन आवर कार. It is not designed to stop you actually. It is designed to help you go faster.
जब आपकी कार में ब्रेक होता है तभी हम कंफर्ट होता है कि यार अब गाड़ी तेज़ चला सकता हूँ, बिकॉज आई हैव अ ट्रस्ट ऑन माई ब्रेक्स. इट मीन्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन they must have a trust on मात साहब कि उनके ऊपर जो है ना वो ब्रेक मौजूद है. तो इसलिए यूसुफ हुसैन साहब फैसल बैंक के प्रेसिडेंट ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी को तेज़ चला सकता हूँ, मैं अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज़ चला सकता हूँ. एंड सेम गोज विद ऑल CISOs एंड सिक्योरिटी लीडर्स. Other steps, of course, we have many CIOs here and CISOs who have actually adopted the leading cyber security standards like 27001, NIST and all. You name it and they have it, but actually to be implemented as a cyber security process, because it is a process, not destination. It is not a one-time activity. You have to continually improve. We have to do periodic cyber security assessment, and remediations will be done based on the business impact analysis of your organization and the risk appetite of your organization. It is not necessary कि हम जी दुनिया जहाँ के सारे कंट्रोल्स लगा दें और 10 अरब रुपए सिर्फ सिक्योरिटी पे लगा दें. It has to be implemented according to the baseline requirement and according to the risk appetite. One thing which is very critical, साइबर पीरियोडिक साइबर ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने आई बिन इन्वॉल्व अनफॉर्चुनेटली, अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर मोर देन 20-25 साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स जहां ऑर्गेनाइजेशन का इंसिडेंट हो गया है और उसके बाद उनके इंसिडेंट रिस्पॉन्स में हमें जाना पड़ा, रिकवरी में जाना पड़ा, कंटेनमेंट में जाना पड़ा, डिजिटल फोरेंसिक में जाना पड़ा. एंड सबसे जो बड़ा मसला आता है वो होता है कि ब्रीच अलोन इज़ एक्चुअली नॉट अ डिज़ास्टर but mishandle it because of the weak cyber incident response plan. कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय इस दूर पैशमा का पैशमा होना. तो हम भी बाद में पैशमा होते हैं. पैच मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए. टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगेन हमने बहुत देखा है और सारे लीडर्स बैठे हुए हैं. वी हैव टू इम्प्लीमेंट डिफेंस इन डेप्थ कंट्रोल्स. हम अपने घर के ऊपर भी डिफेंस इन डेप्थ कंट्रोल लगाते हैं. ऐसा नहीं होता कि हम मेन गेट के ऊपर एक कंट्रोल लगा दें और कह दें सारे दरवाजे अंदर से कर दें. आखिर में हमारे कमरों में भी कोई लॉकर मौजूद होता है, उनमें भी कोई ड्रॉर मौजूद होती है, उसके अंदर भी कोई हिडन ड्रॉर मौजूद होती है, उसको सिक्योर करते हैं. इट मीन्स यू हैव टू कीप इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी कंट्रोल डिफेंस इन डेप्थ फ्रॉम द पेरीमीटर टू होस्ट लेवल. इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड सॉल्यूशन like all 24/7 monitoring solution, integrate your SIEM solution with all applications and all. One thing which is very critical, जो हम कह रहे हैं ना कि सबसे दुनिया में वीकेस्ट लिंक कौन है जो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को अकर करता है, वो हम हैं. वी पीपल आर द वीकेस्ट लिंक इन द साइबर सिक्योरिटी चेन. इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ और सर इरफान साहब खुद हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं. तो हेल्थ केयर में कोविड में इंडस्ट्री कोलैबोरेशन ही दुनिया में काम आया, एक दूसरे से लर्निंग कर्व लिया. सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, एंड ऑफ कोर्स रेगुलेटर्स इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, स्टेट बैंक, PTA एंड SCCP ऑफ कोर्स, कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को फ़रोग़ किया है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग थ्रेट मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग थ्रेट इंटेलिजेंस एंड ऑल. और आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, जो मुश्किल काम है, हमें बीइंग अ लीडर, हम अच्छे खासी उम्र गुजर चुकी है और सब लोग मौजूद हैं और लीडर्स भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान में आज तक मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहना चाहिए. वी आर अ वेरी रेजिलियंट नेशन. तो अपने खुद भी डिटेन रहें. ऑफ कोर्स इकोनॉमिक करंट इज़ वेरी क्रिटिकल. पैरिटी टू रूपी टू पैरिटी, जो डॉलर पैरिटी है वो भी बहुत क्रूशल है. बट स्टिल अपना मुल्क अपना ही है. रिसेंटली मैंने लास्ट वीक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने 100-150 लोग जो हमारे पास हैं उनके साथ एक टाउन हॉल की, तो मैंने एक छोटा सा 4-5 लाइनें शेयर की, कहीं वो मैं उस पर करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप लोग अपनी टीम को भी शायद ये बात कह दें, या मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि ब्रेन ड्रेन से बेहतर है कि यहीं बेहतर काम करें, कुछ फ्रीलांस करें, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश करें एंड देन ग्लोबल काम करने की भी कोशिश करें. ये मुल्क आखिर में हमारा ही मुल्क है. तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो. मेरी उम्मीद मेरा प्यार, मेरी आस रहो. रोज़ी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, जिसको सेंचना है लहू से वो चमन मत छोड़ो.
जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे। फूल परदेस में चाहत का नहीं खिलता है, ईद के रोज़ गले कोई नहीं मिलता है। मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।